Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with question number 6 of exercise 12.1. So we have done till question number 5. Now question number 6 says evaluate. So the first part is 1/3 raised to the power minus 1 minus 1/4 raised to the power minus 1 whole raised to the power minus 1. So this is the first part. Now in this part children, again we have to observe the exponents and the base. अब base तो different है and exponent भी, पर exponent same है, ठीक है. But अभी हम माइनस को एलिमिनेट करने का सोचेंगे सबसे पहले. सो व्हेन वी विल एलिमिनेट द माइनस, सो ये जो 1/3 है दैट विल बिकम 3. Why? Because I don't think now I have to explain you why children. Because जब भी हमें माइनस का साइन एक्सपोनेंट में से एलिमिनेट करना होता है तो हमारे जो भी नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. अगर वो 1/3 है तो वो 3 हो जाएगा. इफ इट इज ऑलरेडी 3 तो वो 1/3 हो जाएगा, ठीक है. सो दिस विल बी 3 raised to the power 1, not minus 1 now. This will be 3 raised to the power 1 minus 4 raised to the power 1 whole raised to the power minus 1 as it is. अभी ये तो कहीं नहीं जाएगा ना, अभी तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया है. सो 3 raised to the power 1 भी 3 होता है and 4 raised to the power 1 भी 4 होता है. सो 3 minus 4 will be minus 1 minus 1 raised to the power minus 1. अब अगेन हमें माइनस एलिमिनेट करना है. सो दिस विल बी 1/-1 raised to the power 1. So that will be 1/-1 only, or we can write this as -1 because 1/1 तो 1 ही होता है, ठीक है. So answer is -1. Okay. So this was our first part of question number 6. देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था बट सॉल्व करने में तो बहुत इजी था. माइनस माइनस एलिमिनेट करना है. सो ये 1/3 3 हो गया एंड 1/4 4 हो गया. देन हमने इसको 3 - 4 किया तो -1 आ गया. देन -1 रेज़ टू द पावर -1 है तो दैट वुड बी 1/-1 क्योंकि रेसिप्रोकल तो होगा, राइट. सो अब हमारे पास आंसर आ गया -1. सो -1 इज द answer. Now this was the first part of question number 6 children. Now let's come to second part. Coming to the second part of question number 6. So the second part is 5/8 raised to the power -7 into 8/5 raised to the power -4. So yes, now we have to evaluate this. अब children now let's see. अब हमारे पास माइनस का साइन है. सो माइनस का माइनस साइन हमेशा पहले एलिमिनेट होगा, ठीक है. सो दोनों माइनस के साइन है. सो इट मीन्स हमें रेसिप्रोकल करना है. मीन्स जो 5/8 है वो हो जाएगा 8/5 एंड जो 8/5 है वो हो जाएगा 5/8. सो डोंट गेट कंफ्यूज. दिस विल बी 8/5 नाउ एंड यहाँ पे 7 एज इट इज into this will be 5/8 now
एंड यहाँ पे 4 एज इट इज. इट मीन्स हमने सिर्फ अभी माइनस का साइन एलिमिनेट किया है एंड दैट टू विद दिस रूल. राइट नाउ second rule which can be applied is a upon b raised to the power m equals to a raised to the power m upon b raised to the power m. मतलब जो हमारी पावर है उसको हम सेपरेटली नोट डाउन कर सकते हैं. सो ये हो गया 8 raised to the power 7 upon 5 raised to the power 7 into 5 raised to the power 4 upon 8 raised to the power 4. राइट. सो अब हमारे पास ये यहाँ तक हमारा स्टेप पहुंच चुका. अब नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. 8 डिवाइडेड बाय 8 है. ठीक है, ये हमारे पास ऐसे है ना. 8 raised to the power 7 into 5 raised to the power 4 upon 5 raised to the power 7 into 8 raised to the power 4. राइट. सो अब ये हमारे पास जो 8 और 8 है ये दोनों डिविजन में. अब डिविजन में है एंड साइन एंड बेस सेम है. 8 सेम बेस एंड डिविजन में. सो इट मीन्स पावर विल बी subtracted. It means this will be 8 raised to the power 7 minus 4 upon 5 raised to the power 7 5 raised to the power 4. अब इधर क्या होगा, इधर भी हमारे पास जो बेस सेम है 5 एंड दोनों डिवीजन में है. राइट. सो इधर भी हमारे पास जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट होगी. सो 7 minus 4. Right. So 7 minus 4 will give us 3. So 8 raised to the power 3 upon 5 raised to the power 3. Right. So अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. So 8 8 जा 64 and 64 8 जा 8 4 जा 32 3 carry 8 6 जा 48 49 50 51. So 512 upon we have 5 5 जा 25 25 5 जा 125. So 512 upon 125 is the answer. Yes. So this is the answer of part number 2. So basically what we did in this question, हमारे पास जो दो नंबर्स थे, जो दो फ्रैक्शंस थे, वो उन दोनों के साथ हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट था. सो जो नेगेटिव हमने यहाँ पे जो था उसको एलिमिनेट करना था. सो फॉर दैट वी रेसिप्रोकल बोथ दी फ्रैक्शंस. रेसिप्रोकल करने के बाद हमने उनको सेपरेटली नोट डाउन किया, पावर को दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया. उसके बाद हमने 8 और 8 दोनों डिविजन में है एंड बेस सेम है. सो पावर माइनस. सिमिलरली 5 and 5 दोनों सेम बेस है एंड दोनों डिविजन में है. सो अगेन पार्ट माइनस. सो देन वी गॉट आवर आंसर. सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन दिस एक्सरसाइज विल बी कंप्लीट. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. Now coming to question number 7. Question number 7 says simplify. So the first part is
25 into t raised to the power minus 4 upon 5 raised to the power minus 3 into 10 into t raised to the power minus 8, where t is not equal to 0. So yes, this is our part number 1. अब देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, but let's see how we will simplify this. So we have 25 here. ठीक है, 25 है हमारे पास और t है न्यूमरेटर में. इन डिनोमिनेटर वी हैव 5, 10 एंड t. ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में बेस सेम चाहिए, और जब बेस सेम होगा सो वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, राइट. सब्ट्रैक्ट करेंगे जब बेस सेम होगा और डिवाइड हो रहा होगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा. मतलब यू नो राइट, 2 रूल्स. फर्स्ट रूल इज a raised to the power m divided by b raised to the power n, a raised to the power n equals to a raised to the power m minus n, and similarly a raised to the power m into a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n. So यही रूल हम अप्लाई कर सकेंगे, बट उसके लिए बेस तो सेम होना चाहिए. अब इधर तो यहाँ पे तो सिर्फ t का बेस सेम है और किसी का सेम नहीं है, बट 25 can be written as 5 square because 5 into 5 is 25. फिर 5 और 5 भी बेस सेम हो सकता है. And now 10 is left. So 10 can be written as 2 into 5. उससे क्या होगा, 5 एक और आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो उसको भी हम उसमें इंक्लूड कर पाएंगे. सो अभी मैंने 25 को 5 स्क्वायर लिख दिया एंड 10 को 2 into 5 लिख दिया. नाउ वी हैव 5 raised to the power 1 here, and we know that a raised to the power m into a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n होता है. So it means अभी हमें बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है, so it means this will be 5 raised to the power minus 3 plus 1 into 2 into t raised to the power minus 8 as it is. So now we have 5 raised to the power 2 into t raised to the power minus 4 upon 5 raised to the power minus 3 plus 1 will be plus minus minus 2 and sign negative. So we have minus 2 now. ठीक है, into 2 into t raised to the power minus 8 as it is. Now इसको मैं इधर लिख रही हूँ. ओके, सो नाउ वी हैव बेस सेम एंड बीच में डिविजन का साइन, बिकॉज ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है ना 5 5. सो इट मीन्स 5 रेज टू द पावर 2 माइनस माइनस 2. माइनस क्यों होगा, बिकॉज डिविजन में है. ठीक है, इंटू टी रेज टू दी पावर माइनस 4 माइनस माइनस 8. ये भी माइनस क्यों हुआ, बिकॉज डिविजन में है, अपॉन 2 एज इट इज. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. 5 और t को इक्वेट कर दिया एंड 2 एज इट इज रहेगा, बिकॉज 2 का भी हमारे पास कोई भी पेयर नहीं था. नाउ दिस विल बी माइनस माइनस प्लस. सो 5 रेज टू दी पावर 4 इंटू टी रेज टू दी पावर minus 4 plus 8 upon 2. So 5 into 5 into 5 into 5 into t raised to the power 4 upon 2. So 5 5s are 25, 25 5s are 125 and 125 5s are 625. So 625 into t raised to the power 4 equals to 2. So 625 t raised to the power 4 upon 2 is the answer. So simplification of this will be 625 t raised to the power 4 upon 2. So I hope this concept is clear. हमें बेसिकली जो नंबर डिनोमिनेटर में है वही नंबर न्यूमरेटर में चाहिए.
या फिर जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में चाहिए। सो फॉर दैट अगर हमें किसी भी नंबर को एक्सपैंड करना पड़ रहा है या फिर किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के मल्टीपल्स में लिखना पड़ रहा है, सो वी कैन राइट। जैसे कि हमने 25 को लिखा 5 इंटू 5 और हमने 10 को लिखा 2 इंटू 5। सो यस, अगर हमें उसको एक्सपैंड करना पड़ रहा है सो वी हैव टू डू दैट, बिकॉज हमें इससे 5 मिल गया एंड इधर भी एक 5 मिल गया एंड ओनली 2 सेपरेट रह गया। सो वो एज इट इज हमने कैरी फॉरवर्ड किया, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट. Now coming to the second part of question number 7. Three raised to the power minus 5 into 10 raised to the power minus 5 into 125 upon 5 raised to the power minus 7 into 6 raised to the power minus 5. So again we have this and we have to simplify. अब simplify करना है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले हम नंबर्स को सेम पुट करते हैं और अगर नहीं है तो उनको एक्सपैंड करके सेम बना लेते हैं. सो वी हैव 3 हेयर. 3 को तो हम 3 ही लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास 10 है. सो 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं एंड वो 5 इक्वल हो जाएगा एंड 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 एंड यहाँ पे 2 आएगा एंड वी हैव 3. सो आई थिंक एंड 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब बिकॉज 5 का क्यूब होता है 125. सो आई थिंक ऑल द नंबर्स विल बी देन इन पेयर्स. ठीक है. सो लेट्स राइट दिस इज 3 raised to the power minus 5 into 2 into 5 raised to the power minus 5 into 5 cube upon 5 raised to the power minus 7 into 2 into 3 raised to the power minus 5. So what we did, हमने 10 को expand किया 2 into 5, right? हमने 6 को expand किया 2 into 3 and हमने 125 को लिखा 5 का क्यूब. ठीक है. सो विद दैट हमारे पास सारे पेयर्स में नंबर्स आ गए. सी अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? दिस रूल विल बी a इंटू बी रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m. मीन्स हमें अब जो -5 है ये 2 के साथ भी और ये 5 के साथ भी है. मीन्स दिस विल बी 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 5 रेज टू द पावर -5 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5 raised to the power minus 7 into 2 raised to the power minus 5 into 3 raised to the power minus 5. So now this is the step. अब इस step में हमारे पास 3 है 3 है 2 है 2 है 5 है 5 है 5. ठीक है. So अभी तो हमारे पास 2 5 इधर ही है. So अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a raised to the power m into a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n. सो अभी हमें इन दोनों को ऐड करना है. सो 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 5 रेज टू द पावर -5 प्लस 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर -7 इंटू 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 3 रेज टू द पावर -5. सो अब प्लस माइनस -2 एंड साइन माइनस का. सो दिस विल बी 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 raised to the power -5 into 5 raised to the power
2 upon 5 raised to the power minus 7 into 2 raised to the power minus 5 into 3 raised to the power minus 5. So अभी हमारे पास 3 3 2 2 5 5, अब तीनों इक्वल पेयर में है. सो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी. 3 minus 5 3 minus 5. बेसिकली वैसे तो ये यहीं पे ही कट हो रहा है, 3 भी और 2 भी, ठीक है. पर चलो हम कट नहीं भी करते. सो व्हाट विल डू, 3 रेज टू द पावर minus 5 minus 5, राइट. सो बेस सेम था एंड डिवीजन में थे, तो पार्ट माइनस हो जाएगी, वही हमने किया. इनटू 2 के साथ भी यही करेंगे, 2 भी यहीं पे कट हो रहा है. 2 रेज टू द पावर minus 5 minus 5. अब आते हैं 5 पे. सो 5 रेज टू द पावर minus 2 minus 7. सो ये अब हमारे पास है, दिस विल बी 3 रेज टू द पावर minus 5 plus 5 इंटू 2 रेज टू द पावर minus 5 plus 5 इंटू 5 रेज टू द पावर minus 2 plus 7, ठीक है. सो अभी ये तो 0 हो जाएगा. दिस विल बी 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 5. आई होप दिस इज क्लियर. 7 minus 2 is 5. So anything power 0 is 1. So 1 into 1 into 5 raised to the power 5. So this will be 1 into 1 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. So this is 5 5 is 25, 25 5s are 125 into 25. So 125 into 25 करके देखते हैं. 125 into 25. So 5 5s are 25, 2 carry. 5 2s are 10 plus 2 12, 1 carry. 5 1s are 5 plus 1 6. 5 2s are 10. 5 2s are 10, 1 carry. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 1s are 2. So this is 25. So 3 1 2 5 is the answer. 3 1 2 5 आएगा हमारे पास 5 का 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, राइट. सो दिस इज द आंसर. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन चिल्ड्रन हमें क्या करना होता है, वी हैव टू एक्सपैंड करके नंबर्स को, वी हैव टू डू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ सेम बेसिस. क्योंकि अगर बेस सेम होंगे तो हम अपना लॉ लगा पाएंगे. कौन सा वाला, ए डिवाइड सेम बेस एंड पार्ट माइनस या प्लस, इट डिपेंड्स ऑन डिवीजन, ठीक है. अब यहाँ पे तो अब सब डिवाइड ही हो रहा है. सी इस स्टेप में अब ये भी 5 भी 5 से डिवाइड है, 2 भी 2 से डिवाइड है, 3 भी 3 से डिवाइड है. और जो चिल्ड्रन हमने ये ऐसे किया, ये आया तो एंड में 3 और 2 1 ही. तो ये जब सेम पार होती है ना और एक डिवीजन में होता है तो ये यहीं पे कट हो जाता है. सो ये यहीं पे कट हो रहा था एंड हमारे पास सिर्फ 5 बचता, तो उससे हमारे पास सिर्फ 5 रेज़ टू द पावर 5 आता, ठीक है. सो हमें ये भी करने की नीड नहीं थी, ठीक है. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2. So this was our second part of question number 7, and with this we have completed our question number 7 as well. So we have done question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all questions of exercise 12.1. So now only one exercise is left, children, exercise 12.2, right? And then we'll be discussing all the examples of this chapter as well. As we are discussing the examples of every chapter, so it is very important from the examination point of view also. So we will be discussing the examples of this chapter as well. All right. So
stay tuned for my next video. In that video, I'll be covering exercise 12.2. And if you have any doubt, any query, please mention in our comment section below. And don't forget to like and share this video. Thank you.